Okay, so yesterday we have completed data integration part. So today we are going to start with data reduction part, okay, which is another step in data pre-processing. So what is data reduction? See, as I told you many times, whenever we collect data, the data is in huge amount, right? And when our data is in huge amount, it takes time to process that data. It takes long time to process that data, and analysis on such huge data becomes impractical, infeasible. Okay, that is why we apply some data reduction technique to reduce that, or to get that reduced representation of data set, which is very small, but it carries all the data that you have in your data set. Okay, so it is not like we are going to delete data from the data set, because it will be then information loss. We don't want to lose the information, we want to retain the information, still we want to reduce size of the data set. So for that purpose we have certain data reduction techniques that we can apply on data to reduce its size. Okay, so these, here I have listed some data reduction strategies. Okay, you can see here: dimensionality reduction, then data compression, data compression, numerosity reduction, and data aggregation. These are the techniques used for data reduction. Okay, so we'll see some of them. So first technique we are going to see is dimensionality reduction. For that, first you need to understand the term dimension. Okay, so what is dimension of database or data set? Is dimension is nothing but the number of columns you have in your data set. Okay, so in real life data we have hundreds of columns. Okay, and to interpret those hundreds of columns and to analyze or to get useful information from uh, such big data becomes very difficult. So there are some techniques which can reduce dimension of your data. डायमेंशन क्या होता है, समझ में आया? जैसे आपके पास कुछ टेबल है एम्प्लॉय का, ओके, उसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो इतने हैं, तो इसका डायमेंशन क्या है? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 4 columns. This is called as dimension. ओके, तो ऐसे ही रियल लाइफ जो डेटा होता है हमारे पास, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. And what is purpose here? To reduce the dimensionality, to reduce the features in your data set. Got it? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? What is our purpose? Yes, ma'am. Okay. So here is the purpose given for dimensionality reduction. First is simplification. So when we reduce dimension of our data becomes simple. We are reducing the complexity to make our data easy to understand, easy to visualize. Okay, then another purpose is efficiency. How efficiency will increase? Because we are reducing the dimension, that means we are reducing storage space. और जब स्टोरेज स्पेस कम होता है तो कंप्यूटेशन का टाइम या प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, एंड इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. ओके, देन थर्ड पर्पस of dimensionality reduction is noise reduction. Okay, so when we reduce the dimension, somehow we are trying to reduce the irrelevant data or redundant data in our data set. Okay, so noise reduction भी होता है उससे. ठीक है, these are the purposes, and there are certain methods used for dimensionality reduction. Those are wavelet transforms, principal component analysis, attribute subset selection. Okay, these are some of the techniques of dimensionality reduction. Okay, and dimensionality reduction is one of the technique of data reduction.
ओके, ये फ्लो कभी भी मत भूलना, नहीं तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डेटा रिडक्शन। ओके, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के ये मल्टीपल टेक्निक्स है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, और भी हो सकते हैं, लेकिन आई हैव लिस्टेड हियर सम ऑफ देम जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये डेटा रिडक्शन क्या है? डेटा रिडक्शन इज वन प्रोसेस और वन स्टेप इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसके पहले हमने दो स्टेप्स ऑलरेडी देखे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के, दैट इज डेटा क्लीनिंग and data integration. We are currently at third step of data pre-processing, that is data reduction. For data reduction we have multiple techniques, one of them is dimensionality reduction. Okay, और dimensionality reduction के ये multiple techniques है, इसमें से हम we are not going to go in detail of these techniques. Okay, मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पे देती हूँ कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये डेटाबेस है जो लेफ्ट में है, दिस इज आवर ओरिजिनल डेटा सेट। So in that original data set we have product ID, price, number of sales, customer reviews, stock quantity. Okay, and we want to reduce the dimensionality of this data set. तो जैसे हमने कुछ एक यहाँ पे जो टेक्निक्स हमने लिस्ट किए हैं, इसमें से कोई एक टेक्निक हमने अप्लाई किया, तो आफ्टर अप्लाइंग द डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक योर डेटा सेट विल बी लाइक दिस। प्रोडक्ट आईडी है और हमने उसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट लेट से हमने अप्लाई किया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो वो क्या करता है कि जो कुछ आपका डेटा है डेटा सेट में उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन वो पूरे डेटा का जो इसेंस है वो आपको कुछ एक या दो कंपोनेंट में दे देता है। ठीक है, तो देर आर लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इट परफॉर्म्स, बट ओवरऑल आइडिया इज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 कॉलम्स थे, तो उसको हमने 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, so this is the first technique in data reduction. Now second technique of data reduction is data compression. Okay, so this data compression are the transformation which are used to create a smaller or compressed version of original data. Okay, again यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं? We are trying to reduce the data. ठीक है, तो ये डेटा कंप्रेशन के भी अलग अलग टाइप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लॉसलेस कंप्रेशन, then we have lossy compression, string compression, dimensionality reduction and numerosity reduction. These are the techniques used in data compression. So what is lossless compression? Lossless means without any loss. So we are trying to reconstruct original data. We are trying to reconstruct original data from this compressed data without any loss of information. ठीक है, हम यहाँ पे डेटा रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन we are trying to reconstruct or trying to keep our again information in the data without losing it, right? Lossless compression means the original data can be perfectly reconstructed. जो हमारे पास कॉम्प्रेस डेटा हमें मिलेगा उससे हम फिर से ओरिजिनल डेटा, जो कॉम्प्रेस डेटा होगा उसको हम फिर से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पीसीए में यहाँ पे हमने डायमेंशनलिटी रिडक्शन में देखा कि ये जो है हम हमारे पास ये कॉलम्स है, इनको हमने कुछ अलग ही वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक बार आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो आप बता नहीं सकते कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट में कौन से वैल्यूज हैं और कौन से कॉलम से वो डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिस इज इरिवर्सिबल।
लेकिन जब आप लॉसलेस कंप्रेशन करते हो तो क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डेटा, बट जो कॉम्प्रेस डेटा है उससे उससे उसको आप फिर से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज lossless compression. Okay, then secondly we have lossy compression. So only an approximation of original data can be reconstructed from the compressed data, and it means some information is lost. Okay, so some compressions are lossy. That means when we compress the data, we cannot get the entire original data. Okay, so there is some loss of data. These are two types of compressions, lossless and lossy. Okay, now here are various methods for compressing data. ठीक है, ये दो क्या हो गए टाइप. जब मतलब जब भी आप कॉम्प्रेशन करते हो तो वो तो एक तो लॉसलेस होगा या फिर लॉसी होगा. ठीक है, और ये जो मेथड्स है, दीज आर द मेथड्स टू कॉम्प्रेस डेटा. तो अगर आपके डेटा में स्ट्रिंग है and you want to compress those string, you have string compression. If you want to reduce the columns या number of features in your data, we have dimensionality reduction. एंड अनदर इज न्यूमरोसिटी रिडक्शन. तो जो भी न्यूमरिक डेटा है उसको आपको रिड्यूस करना है, तो यू कैन रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ डेटा बाय रिप्रेजेंटिंग दैट न्यूमरिक डेटा यूजिंग सम चार्ट्स लाइक हिस्टोग्राम और क्लस्टरिंग. ऐसे प्लॉट करके आप डेटा को विजुअलाइज करते हो टू रिड्यूस द वॉल्यूम. ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन, देयर आर एल्गोरिदम्स which compress text data without losing information. ठीक है, देन वी हैव डायमेंशनल रिडक्शन विच रिड्यूसेस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो हमने इसके पहले देखा था. दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा कॉम्प्रेशन. सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फीचर्स वो कम कर देता है. एंड देन वी हैव न्यूमरोसिटी रिडक्शन. ये क्या करता है, या अगर न्यूमेरिक डेटा है आपके डेटाबेस में तो उसको हिस्टोग्राम या क्लस्टरिंग से रिप्रेजेंट करके उसका वॉल्यूम कम कर देता है. ठीक है, गॉट इट. डेटा कॉम्प्रेशन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, देन थर्ड टेक्निक फॉर डेटा रिडक्शन वी आर गोइंग टू सी इज न्यूमरोसिटी रिडक्शन. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें ओवरलैप है. मतलब जैसे हमने डायमेंशनलिटी रिडक्शन में देखा था एक टेक्निक, सेम डायमेंशनलिटी टेक्निक कैन बी यूज्ड इन डेटा कॉम्प्रेशन. डेटा कॉम्प्रेशन में हमने न्यूमरोसिटी रिडक्शन देखा लास्ट में. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ data reduction technique. Okay, so it can come under data compression or it can be a individual technique. Okay, so numericity reduction क्या होता है, numericity reduction technique decrease the volume of data by using some alternative smaller data representation. जैसे मैंने अभी बताया कि हम डेटा को प्लॉट करके हिस्टोग्राम के फॉर्म में या क्लस्टर्स के फॉर्म में या डेटा क्यूब के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट आवर वॉल्यूम गेट डिक्रीजेस एंड डेटा वी विल नॉट lose the data. Okay, so these numericity reduction techniques can be parametric and non-parametric. So this parametric method use model to estimate the data which store only data parameters instead of actual data. तो ये क्या करता है, पैरामीट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे वैल्यू स्टोर करते हैं जिससे हम रिमेनिंग डेटा के वैल्यू कैलकुलेट कर सके या प्रेडिक्ट कर सके. ठीक है, तो वी आर जस्ट स्टोरिंग पैरामीटर्स ऑफ द डेटा इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा. तो जो एक्चुअल डेटा है वो हम स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ उसके पैरामीटर्स स्टोर करेंगे और वो पैरामीटर्स से एवरी टाइम हम एक्चुअल डेटा कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आपके बढ़ जाएंगे लेकिन डेटा आपका स्मॉल हो जाएगा इन वॉल्यूम. And there are non-parametric methods which store reduced data representation without using any model. Okay, तो पैरामीट्रिक मेथड में हमें कुछ मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे जो हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करके देंगे जो हम स्टोर करेंगे. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा. अभी नॉन पैरामेट्रिक में हम कोई भी मॉडल नहीं यूज करेंगे, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट्स यूज करेंगे जैसे हिस्टोग्राम, क्लस्टरिंग, सैम्पलिंग, डेटा क्यूब एग्रीगेशन, ऐसे
चार्ट्स यूज करेंगे और जिसमें हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर आपका आपके डेटा में लेट से कुछ कॉलम्स है, व्हाट इज दिस, दीज आर द स्टॉक प्राइजेस, आई थिंक the following data are the list of all electronic price for commodity sorry for commonly sold items। ये क्या है, प्राइजेस है, लेट्स सी these are in dollars। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इन डॉलर। तो we have these many values in our data set। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन हिस्टोग्राम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया और जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम में डेटा रिप्रेजेंट किया। तो हमें इससे पता चलता है कि प्राइजेस 1 to 10 में ऑलमोस्ट 12 आइटम्स है, राइट। इन रेंज, इन प्राइस रेंज 11 to 20 इसमें 25 आइटम्स है, एंड इन रेंज 21 to 30 वी हैव ऑलमोस्ट 15 आइटम्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा इनटू वन हिस्टोग्राम। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर डेटा रिडक्शन। डाउट है इसमें कुछ? जैसे अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 to 10, तो कितने आइटम्स है, वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो ये जो हुआ 13 का काउंट, ये हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने रेंज बना लिया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो ये रेंज डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। हमारा पर्पस क्या है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दीज मेनी वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 वैल्यूज है हमारे पास। तो ये 50 वैल्यूज हमें स्टोर नहीं करनी है, हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। So instead of storing these 50 values in the data set, what we are doing, we are representing those values in histogram। ठीक है, तो एक ही ये जो चार्ट है इसमें हमने सारे वैल्यूज फिट कर दिए। ओके, so actual data we are not storing, what we are storing, we are storing its representation। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि जो भी हमारे पास आइटम कॉमनली सोल्ड आइटम्स का डेटा है, उसका जो इसेंस है, उससे उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये हिस्टोग्राम से मिल जाती है। ठीक है, so this is how we are trying to reduce the data। Got it? Yes, ma'am. Okay, then next is data cube aggregation। तो डेटा क्यूब एग्रीगेशन में हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टोर समरी ऑफ द डेटा। ओके, वी आर ट्राइंग टू स्टोर समरी ऑफ डेटा इन वेरियस एट वेरियस लेवल्स। ओके, सो डेटा क्यूब का इंट्रोडक्शन हमने पहले भी देखा था। इट इज लाइक अ क्यूब एंड वी कैन स्टोर डेटा इन मल्टीपल डायमेंशंस। So it is a multi-dimensional array of values which is often used to describe data in terms of various dimensions and measures। So उसके हर एक सेल में जो डेटा होता है वो क्या होता है, इट इज अ एग्रीगेट वैल्यू, इट इज अ सम और एवरेज ऑफ करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस। ओके, मैंने इसके पहले भी आपको डेटा क्यूब का एग्जांपल दिखाया था। अगेन हियर यू कैन सी, सपोज यू हैव अ डेटा सेट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर सम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये कौन सा डेटा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का सेल्स का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा सेट में देख सकते हो, लेट्स से ऑन दिस डेट 1 January 2023, प्रोडक्ट का नाम था टीवी। स्टोर ए पे उसका सेल्स अमाउंट है 500। ठीक है, ऑन द सेम डे फॉर प्रोडक्ट फोन, स्टोर बी का उसका सेल्स अमाउंट है 300। देन ऑन 2 January प्रोडक्ट इज टीवी, स्टोर ए और उसका सेल्स अमाउंट है 450। एंड ऑन द सेम डे 2 Jan प्रोडक्ट इज डिफरेंट, दैट इज लैपटॉप, इन स्टोर सी उसका सेल्स अमाउंट है 700। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज आवर एक्चुअल डेटा।
ये किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का डेटा है जिसके यहाँ पे हमें 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं, राइट, ए बी एंड सी। ओके, सो डेटा क्यूब एग्रीगेशन के स्टेप्स कैसे हैं? फर्स्ट, पहले तो हम डिटेल डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वी क्रिएट अ बेस क्यूबॉइड, then we aggregate the data, and then we can create higher level cuboids. Just wait for a minute. Okay, so ये डेटा हमने क्या किया, we have collected this data. Okay, so same data पे when you apply data cube aggregation, your data can be look like this. जैसे हमारे पास ये डेटा है, तो हमने क्या किया, उसको मंथ वाइज में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो मंथ वाइज अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो क्या होगा, दिस instead of storing these 4 rows, what we'll do, सिर्फ हम जैन मंथ का डेटा और ये सेल्स अमाउंट का टोटल जो भी है वो स्टोर करेंगे, राइट। आ रहा है समझ में? दिस इज अवर एक्चुअल डेटा। हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन यस मैम। अगर हम डेटा क्यूब एग्रीगेशन से करते हैं तो इन मल्टीपल वेज एट मल्टीपल लेवल्स वी कैन स्टोर द डेटा। ठीक है, तो ये सेल्स का डेटा है, तो हमने कैसे एग्रीगेट किया, मंथ वाइज। मंथ वाइज अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो जैन का सेल्स अमाउंट इतना, फेब का इतना, मार्च का इतना, ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मंथ एंड टोटल सेल। ठीक है, फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हो क्वार्टर में। ठीक है, ये डेटा को, जो एक्चुअल डेटा है आपके पास, वैसे ही आप क्वार्टर का डेटा बना सकते हो, राइट। सो क्वार्टर मीन्स 3 months। पहले तो हमने मंथ वाइज किया, देन वी आर एग्रीगेटिंग इट टू क्वार्टरली। जैसे हमने 3 मंथ जैन फेब और मार्च का डेटा एग्रीगेट कर लिया, फिर अप्रैल मई एंड जून का डेटा एग्रीगेट कर लिया, लाइक दैट। ओके, एंड देन वी कैन स्टोर ईयरली डेटा। ठीक है, 2023 का इतना सेल्स है, 2024 का इतना सेल है, लाइक दैट वी स्टार्टेड एग्रीगेटिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द डेटा। ठीक है, और जहाँ पे जो एनालिसिस जैसा चाहिए उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टोर वाइज भी एग्रीगेट कर सकते हैं कि स्टोर ए का दिस जैन मंथ का टोटल सेल कितना था, स्टोर बी का कितना था, स्टोर सी का कितना था। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस एक्चुअल डेटा एज इट इज, ओके, बिकॉज इसके ऊपर एवरी टाइम आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको एवरी टाइम एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, at different levels we can aggregate the data, and we can keep uh, creating these cuboids so that our data analysis will become easy. Okay, so in this way here we are reducing the data. समझ में आया डेटा रिडक्शन? यस मैम। ओके, कौन कौन से टेक्निक्स देखे हमने डेटा रिडक्शन के, बता सकते हो अभी? सबसे पहला देखा हमने, यस, डायमेंसिटी वाला मैम। राइट, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, then second data compression, am I right? यस मैम। डाटा कंपैरिजन कंप्रेशन। Third one, numerosity reduction,
and fourth one is data queue aggregation. Okay, this is the fourth one. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है डेटा रिडक्शन. Now we are going to start with data transformation and data discretization. This is the fourth step in data preprocessing. Okay, we are trying to transform our data and discretize the data. So we'll see what is discretization and all here. Okay, so in data transformation, data is getting transformed or consolidated into forms appropriate for mining. Okay, so जब हम टेक्निक देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा. So this data transformation technique involve smoothing, attribute construction, aggregation, normalization and discretization. Okay, so discretization is one of the technique of data transformation. So what is data discretization? It is process of converting continuous data into discrete beans or interval. ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा सीखा था. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट continuous data into discrete beans or discrete data. And for this discretization, we can use various techniques like binding, histogram analysis, cluster, decision tree, correlation analysis. These are the techniques used for discretization. Okay, and for transformation, we can use these many techniques: smoothing, attribute construction, aggregation, normalization, and discretization. So discretization is one of the. Now again, try to understand the flow. Data transformation is one of the process in data pre-processing. राइट, ये कहाँ से आया है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग टेक्निक्स हैं, उसमें से एक है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन. ओके, और डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के अगेन अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे बाइंडिंग, हिस्टोग्राम एनालिसिस, जो यहाँ पे लिस्ट किए गए. ठीक है, तो पहले तो हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टेक्निक्स देखेंगे और उसके बाद हम डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के टेक्निक्स देखेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बाय नॉर्मलाइजेशन. तो यहाँ पे आप देखो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक में एक टेक्निक है नॉर्मलाइजेशन, तो अभी हम नॉर्मलाइजेशन देखने जा रहे हैं. तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बाय नॉर्मलाइजेशन. So, what is normalization? Normalization is also very crucial data pre-processing step in data mining. ये data normalization क्या करता है? It will adjust the data to a common scale without distorting differences in the range of values. मतलब let's say आपके डेटा में एक कॉलम है एज एंड दूसरा कॉलम है सैलरी. ठीक है, तो सैलरी की वैल्यूज होंगी कुछ ऐसे 50,000 या फिर 1,00,000, 70,000, ओके, 40,000. ये है सैलरीज की वैल्यू. और एज की वैल्यू हो सकती है लेट्स से 45, 55, ठीक है, 47, 35. दीज आर द वैल्यूज फॉर एज. ठीक है, तो अगर ये कॉलम के नेम आप छोड़ दोगे एंड इफ यू जस्ट लुक एट द वैल्यूज, ये जो वैल्यू है इनके स्केल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. राइट, एज की वैल्यू नेचुरली कम होगी और सैलरी की वैल्यू वैसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो जब आप इस पे डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करते हो तो डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम को पता नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है. वो क्या करेगा, इट विल जस्ट लुक एट योर डेटा एज अ वैल्यू. और जैसे ये सैलरी की वैल्यू को ज़्यादा सैलरी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, इसलिए डेटा माइनिंग का जो भी एल्गोरिदम होगा वो ये सैलरी के वैल्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा देन दीज वैल्यूज. ओके, बिकॉज फॉर अस एज अ डेटा एज इज सेम इम्पोर्टेंट एज सैलरी.
ठीक है, तो ऐसे नहीं हमें चाहिए कि सैलरी ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, और एज कम है तो इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि कोई भी वैल्यू है आपका आपके डेटाबेस में, तो उसको वो एक पर्टिकुलर रेंज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, so again we have some techniques used for normalization. I have listed here two techniques, mean max normalization and z score normalization. Okay, तो आप ये normalization का टेक्निक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि it is converting all your values into equal range. Okay, and equal range or equal scale without distorting differences in the range values. ठीक है, तो रेंज वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको वो खराब नहीं करेगा। ठीक है, इट विल रिटेन दैट डिफरेंस, स्टिल इट विल कन्वर्ट योर वैल्यू इनटू सम कॉमन स्केल। ओके, तो वी will understand this with one example. So one of the technique used in normalization is mean max normalization. Okay, so this mean max normalization is a technique used to scale the value of numeric attribute to a specified range, and that range is usually 0 to 1 or -1 to 1. तो जब आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करोगे डेटा पे, जैसे आपके पास ये डेटा है एज एंड सैलरी का, इस पे अगर आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करोगे तो आपके सारे वैल्यूज एज के एंड सैलरी के कन्वर्ट हो जाएंगे बिटवीन -1 टू +1. Okay, so normalization ensure that all values lie within same range. Okay, and how it will convert it, for converting values in that range we have some formula. This, so v dash is the normalized value equal to v minus minimum of a divided by maximum of a minus minimum of a into new max minus new mean plus new mean. Okay, so this is the formula where v is the original value of attribute, mean minimum of a and max of a are the minimum and maximum values of attribute a in the data set. Okay, and new mean and new max are the minimum and maximum values of desired range. ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रेंज में वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम डिसाइड किया -1 टू +1, तो ये -1 हो गया आपका न्यू मीन और ये +1 हो गया आपका न्यू मैक्स। ठीक है, आई शो यू वन एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एज का कॉलम लिया है, एट, जिसमें एजेस है फ्रॉम 18 टू 90. ओके, एंड वी वांट टू नॉर्मलाइज दिस वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 टू 1. ये जो वैल्यूज है इनको हमें 0 टू 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए पहले तो हम कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मिनिमम ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए क्या है, देन न्यू मिनिमम क्या है एंड न्यू मैक्सिमम क्या है, एंड विल पुट ऑल दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, v माइनस मिनिमम ऑफ ए। तो यहाँ पे v क्या है हमारा, करंटली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द रेंज 0 टू 1। तो हमारा v है अभी 18 माइनस मिनिमम वैल्यू दैट इज 18 डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन दैट इज 19 माइनस 90 माइनस 18 इनटू न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन। तो हमारा न्यू मैक्स है 1 माइनस न्यू मीन है 0 प्लस न्यू मीन, राइट, प्लस न्यू मीन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने कैलकुलेट किया तो 18 का वैल्यू आया 0। ओके, वैसे ही हमने 25 का कैलकुलेट किया तो 25 का वैल्यू आया 0.097। तो ऐसे ही अगर आप ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो ऑल वैल्यूज यू विल गेट बिटवीन 0 टू 1। ओके, जैसे अगर आप 90 का कैलकुलेट करोगे तो 90 का वैल्यू आ जाएगा आपको 1। ठीक है, जैसे 18 का 0 आया, 90 का 1 आएगा, और ये जो बाकी के वैल्यूज है वो सारे इन बिटवीन 0 टू 1 होंगे। जैसे 25 का वैल्यू आया 0.097, दिस इज कॉल्ड एज
नॉर्मलाइजेशन। आया समझ में? यस। Yes, ma'am. ओके, तो these are the values after normalization। जब हमने मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन सारे वैल्यूज पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज ओरिजिनल एज, ये जो है ओरिजिनल एज एंड देन नॉर्मलाइज एज। तो ये सारे वैल्यूज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दे ऑल वैल्यूज आर बिटवीन 0 to 1। ओके, so this is mean max normalization। Again we have another technique for normalization called as z-score normalization, or it is also called as standardization। ठीक है, so this technique is also used to transform your data between some range। okay, so it has mean of 0 and standard deviation of 1। ये सारे डेटा को जो भी डेटा है आपके पास उसको ऐसे कन्वर्ट करेगा कि उसका मीन आपको 0 मिलेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मिलेगा। ठीक है, so this method is particularly useful when data needs to be scaled but also requires maintaining the underlying distribution of value। ठीक है, this is always desired condition कि हमें स्केल तो करना है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें एज इट इज रखना है। ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये है एक नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक, इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। अगेन वी हैव फॉर्मूला फॉर इट, v dash, that is normalized value equal to v original value minus mu divided by sigma। यहाँ पे mu is nothing but this mu is mean of attribute values and sigma is standard deviation of attribute values। ठीक है, तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके रखना है एंड देन वी कैन इजीली कैलकुलेट normalized value, okay, using z score। So let us consider one example। So consider we have some data set containing test score of students, okay, and those scores are like this। अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें नॉर्मलाइज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द मीन। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट। सो मीन आया हमारा 70। नाउ विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है बहुत बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 50 माइनस इट्स मीन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 60 माइनस 70 ब्रैकेट स्क्वायर, 70 माइनस 70, ऐसे ही हर एक वैल्यू से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 5 एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज 14.14, 14.14। Now in step 3 we are going to calculate z score for each and every value। तो first value है हमारी 50। how will we calculate, v dash v minus mean। so हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 50 माइनस मीन की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये आया हमारा -1.41। then similarly we can calculate z score for 60, वो आया हमारे पास 0.71। तो ये जो z score नॉर्मलाइजेशन है ये नॉर्मली वैल्यूज को कन्वर्ट करता है बिटवीन -2 to +2। ओके, so if you see all values here after z score normalization, you can see all your values are between -2 to +2। okay, these are the normalized score and this is original score which is present in your data। आया समझ में z score normalization? yes,
इज इट क्लियर? जी मैम। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन के कौन से टेक्निक्स देखे हमने? कितने टेक्निक्स देखे नॉर्मलाइजेशन के? टेल मी क्विकली. Data transformation, मैम. नो, आई एम ओनली डेट आस्किंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन के कितने टेक्निक्स देखे हमने? दो, राइट? जेड तो स्कोर नॉर्मलाइजेशन एंड मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक टेक्निक है नॉर्मलाइजेशन. एंड इन नॉर्मलाइजेशन वी हैव सीन टू टेक्निक्स, मीन मैक्स एंड जेड स्कोर. ओके. ओके मैम. अभी इसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिटाइजेशन. ओके, तो डिस्क्रिटाइजेशन भी क्या है? डिस्क्रिटाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, डिस्क्रिटाइजेशन में हम देखेंगे दो टेक्निक्स, इक्वल विड्थ बाइंडिंग एंड आई थिंक इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग. ओके, so discretization by binding. So this discretization will convert your continuous data into discrete interval, and this will reduce complexity of your data. Okay, this can also help in smoothing out the noise in your data. Okay, now there are two terms in binding. First is beans, another is bean boundaries. Okay, so beans are the intervals into which continuous data is divided. Okay, जो भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है वो हम इक्वल साइज के बीन्स में डिवाइड करते हैं. एंड देर इज वन मोर टर्म दैट इज बीन बाउंड्रीज. सो दीज आर द एजेस ऑफ द बीन्स which determine where one bean ends and next begins. ओके, तो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बाइंडिंग में एक टेक्निक है इक्वल विड्थ बाइंडिंग. ओके, तो ये क्या है? डिस्क्रिटाइजेशन का एक टेक्निक है इक्वल विड्थ बाइंडिंग. तो इक्वल विड्थ बाइंडिंग में हम क्या करते हैं? It is a discretization method that divides range of data into equal size beans. ठीक है, इसका नाम ही क्या है? इक्वल विड्थ बाइंडिंग. तो इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास डेटा है उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे. ओके, so each bean has same width and data points are assigned to these beans based on their value. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखो आप. लेट्स से दिस इज आवर डेटा. सो दिस डेटा सेट contains, this is the continuous data. Okay, all numeric values are there. This is the continuous data which represent age. Okay, age का डेटा है हमारे पास. तो इस पे अगर हमें इक्वल विड्थ बाइंडिंग करना है तो दीज आर द स्टेप्स. सबसे पहले डिटरमाइन रेंज ऑफ द डेटा. अभी रेंज कैसे डिटरमाइन करना है? रेंज भी हमने फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में ही देखा था. हाउ टू कैलकुलेट रेंज? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो 61 minus 23, so 38 is our range. Now second step, choose number of beans. Okay, तो हमें कितने beans चाहिए वो choose करने. So let's say we want to have 3 beans. जैसे हमने number of beans decide कर लिए, we can calculate bean width. ठीक है, bean width कैसे पता चलेगी? Based on range and number of beans. ठीक है, तो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीन्स इज इक्वल टू बीन विड्थ. तो हमारा रेंज क्या है? 38. नंबर ऑफ बीन्स कितने चाहिए हमें? 3. तो हमारी बीन विड्थ क्या आ गई? 12.67. ओके, एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस बीन विड्थ वैल्यू विल क्रिएट बीन्स. ठीक है, तो बीन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? सी हियर, we want to divide our data into 3 beans. ठीक है, so in bean 1 there will be 23 and 23 plus this bean width. okay, तो 23 से शुरू होके 35.67 तक जितने भी वैल्यूज है वो सारे किस में आएंगे? बीन 1 में.
ओके, वैसे ही बीन 2 स्टार्ट होगा यहाँ से 35.67, दिस इज बीन बाउंड्री। ओके, और वो कहाँ पे एंड होगा? 35.67 प्लस बीन विड्थ। ओके, तो अगर हमने इसमें ऐड किया 12.67 तो हमें क्या मिलता है? 35.67 टिल 48.34। तो इस रेंज में जो भी वैल्यूज है आपके डेटा में वो सारे बीन 2 में आएगी। ओके, और बीन 3 सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड, वी कैन कैलकुलेट बीन 3। तो 48.34 से स्टार्ट होगा, और अगर आप 48.34 में 12.67 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 61। ठीक है, 61.1 समथिंग मिलेगा, बट विल कंसिडर 61 फॉर बाउंड्री ऑफ दिस लास्ट बीन। ठीक है, सो बाउंड्री ऑफ लास्ट बीन इज ऑलवेज योर लास्ट वैल्यू। तो क्या आप बता सकते हैं बीन 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आएंगे इसमें से? रेंज आपको क्या कंसिडर करना है? 23 टू 35.67। ओके, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आएंगे इसमें बीन 1 में, बिटवीन दिस रेंज? यस, 10, 23 आएगा, देन 23, 25, 25, 31, 35. 31, 35, राइट। देन नेक्स्ट बीन में कौन कौन से आएंगे? 40, 45, 50, सॉरी 50 नहीं आएगा, राइट। और ये जो थर्ड बीन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यस, 50, 52, 52, 50, 60 61. and 61. Okay, so this is how we have divided our data into 3 beans। ओके, तो ये बीन का साइज इक्वल है, साइज इक्वल है मतलब एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है ऐसे नहीं है। ये जो रेंज है उसका दैट इज इक्वल फॉर एवरी बीन। ठीक है, ये अगर आप रेंज का डिफरेंस निकालोगे तो आपको सेम मिलेगा। So this is how we are dividing our data into groups, okay, or beans. This is called as equal width binding, which is example of data discretization. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कंटिन्यूअस डेटा था हमारे पास उसको ऐसे बीन्स में या डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज वन बीन, दिस इज अनदर बीन एंड दिस इज third bean, and then we can put actual data into these beans। Okay, so here you can see we have assigned data points to bean। Any doubt in this equal width binding? No, ma'am. Okay, I think we left with only 2 slides, I'll complete this topic and then finish this unit। Okay, then last is equal frequency binding, which is another technique of data discretization। Okay, इसको इक्वल डेप्थ बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इक्वल विड्थ बाइंडिंग देखा वैसे ही ये क्या है? इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग इज नथिंग बट द इक्वल डेप्थ बाइंडिंग। ओके, it is a discretization technique which is used to divide data set into beans such that each bean contain approximately same number of data points। ठीक है, इक्वल विड्थ बाइंडिंग में क्या था? हमारे बीन्स का साइज सेम था और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जांपल। सेम डेटा है हमारे पास, नाउ उस पे हम क्या करने वाले हैं? इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका पहला स्टेप है सॉर्ट द डेटा। द डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, यू कैन सी। नाउ we have to choose number of beans। okay, so again we have selected, let's say number of beans 3। okay, अभी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? बीन साइज।
पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, बीन विड्थ। ठीक है, तो ये जो बीन्स है इनका विड्थ सेम है। अभी यहाँ पे हमारा साइज सेम होगा। बीन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर 10 and number of beans we want is 3. So if you divide 10 by 3, you will get 3.33. So for simplicity, we can consider it as a 3. Okay. तो हर एक bin में हमारे पास कितने elements रहेंगे अभी, 3. Okay. So this sorted data will directly keep into the beans. Okay. So तीन तीन के ग्रुप में हम डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 3 आ गई है। तो फर्स्ट bin में फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ओके, सेकेंड बिन में सेकेंड 3 पॉइंट्स एंड लास्ट बिन में रिमेनिंग पॉइंट्स। ओके, तो हम 3.3 एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया। सो दीज आर द bins if you apply equal frequency binding. We are trying to divide our data into bins of same size. ठीक है, any doubt in equal frequency binding? Yes. Yes, ma'am. Okay, so with this we have finished with data pre-processing unit. Okay, we have completed all 4 steps in data pre-processing which were there in the syllabus. So in next lecture we'll start with the 4th unit. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Just wait for a minute, मुझे screenshot निकालना है. Okay, now you can leave.